हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडी अबाउट द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीज द स्टीरियोजेनिक एस्पेक्ट ऑफ द एंड ऑप्टिकल एक्टिविटीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें अपन ने रेसमिक मिक्सचर मेजो कंपाउंड्स कायरल सेंटर यस और ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में हमने स्टडी की थी। उसमें हमने 3 मेन जो है मेजर कंडीशन के बारे में स्टडी की थी। कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपाउंड्स होते हैं कैसे होने चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए। एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स का मीनिंग होता है उस कंपाउंड्स के इफ़ वी such types of compounds or molecules are converted into two parts, then they we should not be obtain two identical parts. Yes. और सेकंड जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कंपाउंड्स दे डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? कंपाउंड्स their mirror image is non superimposables. If these all three conditions are satisfied or fulfilled at the same time, then we saying that the compound is a optical activity. That means such types of compounds are show optical activities. Yes, so optical active compounds are turn the light into dextro or laboratory, that means clockwise or anti-clockwise. Yes, so clockwise rotation is known as dextrorotatory, laboratory, and anti-clockwise rotation is known as dextrorotatory. Yes, now we some more aspect of stereochemistry studies today. Yes, so let's go start the studies. Yes, today we consider some important points, remaining points. Enantiomers, very important questions. What do you mean by enantiomers and how can we define the enantiomers? So enantiomers, that means stereoisomer is related to each other and non-superimposable mirror image. That means stereoisomer, that means optical active compounds, their isomer, the non-superimposable mirror image. ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स या आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के आइसोमर जिनके मिरर इमेज होते हो क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। सच टाइप्स ऑफ फिनोमेना या सच टाइप्स ऑफ process is known as enantiomers. If we consider here example of a butane to all, this is butane to all, this is a mirror and this is a mirror image. Yes, when this butane to all is superimposed on, yes, this image, mirror image, then this is not superimposable. That means that part is not completely overlap or covered the structure of this. If we consider this is first structure, this is second structure, and this is third structure. If first structure is superimposed on their mirror image, yes, then this molecule or this compound is not superimposed. That means this molecule or compound is not completely overlap of this molecules. So such types of compounds are known as non-superimposable mirror image. Yes, if this compounds mirror image is rotate about the 180 degree, then we should obtain differ configuration. Yes, if mirror image of a first A compound, that is second is rotated about the 180 degree, then we obtain differ configuration, relative configuration in the space, in the 3D space. So such types of compounds are show enantiomers and also known as enantiomerism isomer. Yes, एनेंटियोमर्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है? सेम होती है। एनेंटियोमर्स सच एज स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकेंड्स, दीज आर एनेंटियोमर्स। आपस में क्या है? एनेंटियोमर्स है। एनेंटियोमर्स में मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होता है, बट कंपाउंड से कंपाउंड्स का जो उसका मिरर इमेज होता है क्या होता है? नॉन सुपरइम्पोजेबल होता है। एंड अगर हम इसको और प्रूव करें तो क्या करते हैं? ये मिरर इमेज है, इसको 180 पे रोटेट करें तो हमें फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर जो सेम ऑब्टेन होगी। यस, अगर इसको रोटेट करते तो हमें क्या मिलती है? ये फर्स्ट आइडेंटिकल, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड जो है सेम वो मिल रही है। तो ये सेकंड और थर्ड या सेकंड और फर्स्ट होती है क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर है। सो सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एनेंटियोमर्स. एनेंटियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस, ये सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एनेंटियोमर्स की क्या होती है? सिमिलर होती है, सच एज दिस एंड दिस. यस, बिकॉज उसका मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है? रिलेटिव कॉन्फिगरेशन इन द स्पेस. मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल या ग्रुप जो है उस ग्रुप का रिलेटिव कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है. देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया.
तो कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड या मॉलिक्यूल की डज नॉट चेंज। ये सिर्फ ओनली डिफर होते हैं, किस में होते हैं? प्लेन और पोलराइज्ड लाइट। यस, एनेंटियोमर्स होते हैं ओनली डिफर होते हैं किसके फॉर्म में? यस, प्लेनो पोलराइज्ड लाइट। या तो प्लेनो पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, या फिर ये क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये प्लेनो पोलराइज्ड लाइट जो है इसको क्या करते हैं? रोटेशन की जो डायरेक्शन है, रोटेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो डिफर होते हैं। या तो एनेंटियोमर्स कैसे होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटेड होते हैं, या फिर क्या होते हैं? लेवो रोटेटेड होते हैं। प्लस और एल रोटेटरी। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज इफ लाइट को रोटेट करे माइनस या डी रोटेशन। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन जो है उस मॉलिक्यूल को रोटेट करने की, जो लाइट को रोटेट करने की जो डायरेक्शन जो होती है वो डिफर होती है एनेंटियोमर में, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एनेंटियोमर की क्या होती है? सिमिलर होती है। यस, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? एनेंटियोमर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन कंसिडर करते हैं रिटेंशन। रिटेंशन में बेसिकली होता क्या है? रिटेंशन जो हम कंसिडर करते हैं इसमें क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर का मीनिंग आप ध्यान रखना, स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन सेम ही होता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड कायरल कार्बन इज सिमिलर। कायरल कार्बन का सेकंड नाम जो स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मीनिंग होता है जो क्या करता है? जो सेंटर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, स्टीरियो फैक्टर्स के लिए। स्टीरियो फैक्टर्स दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सच टाइप्स ऑफ सेंटर इज नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर। इफ वी कंसिडर हियर स्टीरियोजेनिक सेंटर, दैट मीन्स कायरल कार्बन रिटेंशन में क्या होता है? दिस इज ए, एक्स, बी एंड सी। दिस कार्बन इज स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन। दिस इज स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का अनदर नाम भी जो स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर, कायरल कार्बन कह सकते हैं। यस, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर को अपन क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ में ये जो कायरल सेंटर होता है, कायरल मॉलिक्यूल से कायरल मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। तो एक्स हमने यहाँ पे क्या लिया है? न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया। उस केस में क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होने वाला ग्रुप जो होता है उसके रिलेटिव कॉन्फिगरेशन में उसके स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं होगा। ओनली क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल जो होता है, ओनली ये मॉलिक्यूल जो होता है ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसमें ये भी बता सकते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन जो होता है उस रिलेटिव कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन द रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Yes, so this process is known as retention। मेन ये रखना है, ये ग्रुप जो वाई ग्रुप क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे? एक्स से। स्टीरियोजेनिक सेंटर का ये जो बॉन्ड जो होता है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्टेंट का कॉन्फिगरेशन, जैसे ये राइट हैंड साइड OH है तो यहाँ पे इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो भी कहाँ पे ऐड होगा? राइट साइड से होगा, लेफ्ट साइड से नहीं होता है। दैट मीन्स ये SN2 मैकेनिज्म होती है उसको फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म उसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। SN2 में बैक साइड से अगर होता है यस तो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन जो होता है क्या होता है? चेंज हो जाता है। यस, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसका कॉन्फिगरेशन है, ये लेवोरोटेटी इसकी फॉर्म है। यहाँ पे भी ये मिलेगा, क्या मिलेगा? लेवोरोटेटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटी आ गया। कॉन्फिगरेशन जो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन में नो चेंज। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन अराउंड द स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर के अराउंड जो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है।
स्टीरियोजेनिक सेंटर इज नो चेंज। सिंपली हम कह सकते हैं इसमें जो बॉन्ड जो होता है ब्रेक नहीं होता है, बस ये मॉलिक्यूल जो होता है, ये एटम जो होता है, यही क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये कॉन्फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन बोलते हैं। यस, स्टीरियोजेनिक बॉन्ड जो होता है, ये स्टीरियोजेनिक बॉन्ड है। स्टीरियोजेनिक बॉन्ड जो है वो ब्रेकर नहीं हो रहा है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये स्टीरियोजेनिक बॉन्ड बोलते हैं। नो ब्रो, ये ब्रोकन नहीं होता, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ मॉलिक्यूल जो होता है इसका रिलेटिव कॉन्फिगरेशन जो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। इस टाइप की जो प्रोसेस है या रिएक्शन जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोसेस बोलते हैं, रिटेंशन रिएक्शन बोलते हैं। इनमें जो कॉन्फर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो है दोनों का क्या होता है, सेम होता है। रिएक्टेंट का कॉन्फर्मेशन क्या है, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ये कौन सा है, लेबोरेटरी एल है, तो ये भी क्या रहेगा, एल ही रहेगा। ये प्लस है, प्लस एल है तो ये भी प्लस एल रहेगा। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन जो होता है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। यस, सो दिस इज नोन एज रिटेंशन। आप कोई भी रिएक्शन को लेके भी कंसिडर कर सकते हो। यस, अगर मैं कोई रिएक्शन लेके कंसिडर करूँ, कंसिडर क्या करना है, एक सेंटर कैसा होना चाहिए, स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। दिस इज एच CH3 Cl CH3 and C2H5. This is chiral molecule. This is nucleophile. ये डबल, ये बड़ा जो डैश वाला बॉन्ड और ये वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड जो क्या शो कर रहा है, फ्रंट और बैक वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यस, यहाँ पे जो एल जो है कहाँ है, राइट हैंड साइड है। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन इसका क्या है, लेबोरेटरी है। लाइट को प्लेन पॉलराइज लाइट को क्या करता है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये मॉलिक्यूल जो बनता है ये भी क्या करता है, प्लेन पॉलराइज लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट ही करेगा। इसका भी क्या होगा, प्लस कॉन्फिगरेशन यानी लेबोरेटरी फॉर्म ही होगी। सो नॉट चेंज द रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर। So this is a retention. Next we compare between retention, inversion and racemization या racemic. इन तीनों को एक साथ हम आइडेंटिफाई करना है, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड racemic मिक्सचर या racemization। हम तीनों को हम एक साथ कंपेयर करें, हमें कैसे हमें आइडेंटिफाई करना, तो क्या होता है उसमें, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड racemization। या racemic मिक्सचर कह सकते हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड racemization। इसको कंसिडर करने से एक मैं रिएक्शन ही कंसिडर कर रहा हूँ, उस रिएक्शन को देखिए प्रॉपर्ली, ध्यान से देखिएगा क्या है। वही स्टीरियोजेनिक सेंटर तो कंपल्सरी है ही, स्टीरियोजेनिक सेंटर को ही कंसिडर करोगे। दैट मीन्स कायरल कार्बन जो है उसको ही कंसिडर करोगे। दिस इज हैलोजन, CH3 C2H5। हम न्यूक्लियोफाइल जो है सेम ले रहे हैं, सेम कंसिडर कर रहे हैं। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल जो क्या है सेम ले रहे हैं। एक केस में जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बन रहा है कैसे बन रहा है, उसका जो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन क्या मिल रहा है,
यहाँ पे रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का क्या है, सेम मिल रहा है। दैट मीन सिंपली हम कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, रिटेंशन। और नेक्स्ट अपन सेकंड ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये OH है, OH का जो रिलेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है कहाँ से आ रहा है, बैक साइड आ रहा है। इस यहाँ पे जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इफ कंसिडर दिस मॉलिक्यूल इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, so conversion of A to B is a retention, conversion of A to B is a retention, conversion of A to C is a inversion, इन्वर्जन दैट मीन्स इनवर्ट अपोजिट रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्टेरियोजेनिक सेंटर से जो है ये स्टेरियोजेनिक कार्बन है, स्टेरियोजेनिक कार्बन के ऊपर जो है ये ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के कंपेरिजन में यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट का रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है क्या है, डिफर आ रहा है। यस, ये कैसे प्रोडक्ट क्या है, एल्फा में इसकी प्लस, तो यहाँ पे रिटेंशन में जो ये भी क्या बनेगा, एल्फा में बनेगी, एल कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। बट यहाँ पे जो क्या बनेगा, डी कॉन्ट्रीब्यूशन, एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्ट्रीब्यूशन। रिएक्टेंट के कंपेरिजन प्रोडक्ट का जो रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। दैट्स यहाँ पे स्टेरियोजेनिक सेंटर का जो बॉन्ड जो होता है, स्टेरियोजेनिक बॉन्ड जो होता है क्या हो रहा है, ब्रोकन हो रहा है। यस, ये चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ये होता है जहाँ पे क्या होता है, ए C प्लस B दोनों होता है, दैट मीन्स रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है। रिटेंशन वाला मॉलिक्यूल कंपाउंड्स एंड इन्वर्जन दोनों ही कंपाउंड्स बन रहे हैं। कितने परसेंटेज बन रहे हैं, दोनों ही इक्वल बन रहे हैं। 50% रिटेंशन हो रहा है, 50% क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। इस टाइप का जो ये मिक्सचर जो होता है उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। एंड सच फिनोमिनन इज नोन एज रैसिमिनाइजेशन। यस, ये D और L जो है 50% क्या है, डी फॉर्म है एंड 50 इसका जो रेशियो है, डी और एल का जो रेशियो क्या मिल रहा है हमें, सेम मिल रहा है। ये मिक्सचर जो होता है, सच टाइप्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज नॉन एज रैसमिक मिक्सर। और ये रैसमिक मिक्सर बनने का जो फेनोमेनन होता है, प्रोसेस होता है, क्या होता है, रैसिमिनाइजेशन होता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन दैट मिक्सचर दैट मीन्स मिक्सचर और substances having equal compositions of a retention and inversion, that means D and L configuration. एंड ये प्रोसेस है, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है, जो इस प्रोसेस को बोलते हैं रैसिमिनाइजेशन प्रोसेस। as racemization. यस, तो ये रिटेंशन, इन्वर्जन और रैसमिक जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा समझिए, हम क्या करते हैं, स्टेरियोजेनिक सेंटर लेते हैं, स्टेरियोजेनिक कार्बन को कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं, दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इनके लिए ही स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका ही एग्जांपल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ओनली एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, उनको ही कंसिडर करते हैं, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करते हैं, दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, बाकी मॉलिक्यूल शो नहीं करते हैं। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर को अपने लिया है, यहाँ पे क्या किया, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे। उस केस में ये सब्स्टिट्यूट लेविंग ग्रुप जो होता है, लेविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट या लेव होने के बाद में जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट होने वाला ग्रुप जो उसका कॉन्फिगरेशन अगर सेम मिल रहा है, कॉन्फिगरेशन सेम मिल रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन। अगर यहाँ पे ये सब ड्रग जो है, सब्स्टिट्यूट होने वाला जो ग्रुप होता है लेविंग ग्रुप, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो कॉन्फिगरेशन में क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं। जब यहाँ पे कोई प्रोसेस होती है, रिएक्शन जो होती है जिसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों हो रहा है, बोथ हो रहा है, एंड
बोथ के थ्रू जो हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है, दोनों की प्रोडक्ट की जो कंसिडरेशन जो होती है क्या होती है, इक्वल है। दैट मीन्स 50% ये बन रहा है तो 50% ये बन रहा है। ये 50-50 वाला जो मिक्सर जो होता है, सच टाइप्स ऑफ मिक्सर इज नॉन एज रेसिमी मिक्सर। और ये प्रोसेस है, मिक्स होने का प्रोसेस है, बनने के प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमराइजेशन प्रोसेस। एंड सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। विच टाइप्स? रेसिविंग मिक्सर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रेसिविंग मिक्सर में एक तो रिटेंशन वाला लाइट को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और एनर्जन वाला लाइट को क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। 50% लाइट जो होती है क्या हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, यानी लेवल रोटेशन हो रहा है। और 50% लाइट जो हो रही है क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो नेट रोटेशन कितना होगा, तो नेट रोटेशन क्या हो रहा है, नेक्स्ट डोर लेवल जो है इक्वल कॉन्फ़िगरेशन है, इक्वल अमाउंट में लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो नेट रोटेशन क्या होता है, 0। नेट रोटेशन ऑफ द लाइट इज 0। यस, तो लाइट तो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल जो उसको रोटेट या उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, उसकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कंपाउंड्स होते हैं लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, लाइट रोटेट नहीं लाइट की डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रही है। यस, वो कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकली कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। सच टाइप्स ऑफ compounds are ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मीन्स रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये हमारा क्या था, स्टीरियोजेनिक सेंटर, दैट मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके बारे में था। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। यस, तो टॉपिक नया है तो आज यहाँ तक ही हम स्टॉप कर देते, वीडियो छोटा ही रखते हैं आज का, बिकॉज अगला जो टॉपिक जो है वो नया है, तो एक ही वीडियो में जो है सभी रिएक्शंस को हम कंप्लीट कर देंगे। नहीं तो फिर इसके साथ में करेंगे तो कुछ रिएक्शन पीछे बच जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। नहीं तो एक ही सभी ऑल रिएक्शन जो है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सभी रिएक्शन एक ही वीडियो में अवेलेबल होगी तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। यस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।